Welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss third part of employment and unemployment in India. In my previous video we already discussed about the meaning of employment and unemployment, what is the meaning of workforce and how workforce play a role to increase GDP in our country. Now we will discuss causes of unemployment in country India. Let's start. We already read about the problem of unemployment, not a single cause, many causes which lead to unemployment in India. We discuss start from the underemployment of economy. We already discussed about the meaning of underdevelopment. Underdevelopment means that our country is not fully utilize our sources. Due to underutilization sources, many manpowers cannot proper utilize. They are working a low hours, or if they are giving full hours, they are getting less salaries compared to their capacities. So this is a main reason in our country to create unemployment. We can say that jobless growth in our economy is main cause of unemployment in our country. Even after more than 16 decades of independence, economy continued to be in the state of underdevelopment or backwardness, not in a single sector, in agriculture sector and in manufacturing sectors. We are leading and preferring to service sector, which cannot create more job. Another reason of unemployment in a country like India. Second cause, rapid growth of population. If we talk about the growth of population, our population rising 1.76% rate, which are very high compared to the developed country like USA, Japan and UK. So number of population increase as a geographical progressions, and our population and our production increase at a arithmetic progressions. Geographic progression easily defeat the arithmetic progressions. It means population increase 2 का square, 3 का square, 4 का square, but our production increase 2 plus 2 plus 2, जो कभी भी बीट नहीं हो पाती. जिस कारण से क्या है कि ग्रोथ और पॉपुलेशन है हमारे देश का, वो सबसे बड़ा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का. जितने लोग पास आउट होते हैं उससे कई गुना कम जॉब क्रिएशन होते हैं. अगर हम जॉब क्रिएशन की बात लास्ट 10 ईयर से करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर -3% जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुई हैं, और सर्विस सेक्टर के अंदर अगर हायर पोस्ट की बात करोगे तो ओनली 0.005% का जॉब क्रिएशन हुआ है. जिस कारण से हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर एंड PhD साइंटिस्ट वो क्या है आर फेल टू गेट good job, so they are migrate from one country to the another country for searching the job. हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. दूसरा जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो टोटली क्रैमिंग बेस्ड है. क्रैमिंग बेस्ड होने के कारण क्या है कि वेन एवर दे पास आउट दे आर टोटली ब्लैंक इन प्रैक्टिकल वर्क्स, जिस कारण से क्या उनको जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स आती हैं. अनदर कॉज इज इंक्रीज प्रेशर ऑन पॉपुलेशन ऑन लैंड. जो हमारी लैंड है उसको बढ़ाना पॉसिबल नहीं है. हमारी जो जोग्राफिकल एरिया है, पॉलिटिकल एरिया है, दे आर रिमेन सेम, बट उसके ऊपर क्या पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है. जिस कारण से क्या है बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई है, बंगलाज में कन्वर्ट हो गई है, गार्डन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है. मतलब उसका क्या है जो एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्शन है वो तेज़ी से कम होने का रीज़न क्या है, लैंड एरिया हमारा रिड्यूस हो रहा है. जिस कारण से क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर पर दबाव ज़्यादा है, प्रेशर्स ज़्यादा है प्रोडक्शन करने का. जिस कारण से क्या अनऑर्गेनिक जिसे फर्टिलाइजर्स केमिकल से प्रोड्यूस की फसल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. जिस कारण से हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है डे बाय डे क्या रिड्यूस हो रहे हैं. अगर हम बात करेंगे हमारे पंजाब और हरियाणा की तो कुछ बेल्ट ऐसी हैं जो टोटली इन्फेक्शंस कैंसर से पीड़ित हो रही है. जिस कारण से क्या प्रोडक्शन ऑफ ए पर पर्सन डे बाय डे रिड्यूस है.
ये अनदर कोज है। एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन आवर रूरल एरियाज, बट एग्रीकल्चर बीइंग ए सीजनल ऑक्यूपेशन डज नॉट प्रोवाइड वर्क टू फार्मिंग कम्युनिटीज़ ऑल द ईयर्स राउंड। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो सीजनल है जिसे हम कह देते हैं मौसमी बेरोजगारी। जो हमारे इंडियन फार्मर हैं वो अलाइंड एक्टिविटी को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाते ड्यू टू दी माइक्रो फाइनेंस प्रॉब्लम, जिस कारण से क्या है कि वो 3 और 4 मंथ इन ईयर आर बिजी, अदर मंथ रिमेन फ्री। दूसरा इसका बड़ा रीज़न है डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट मीन्स छिपी बेरोजगारी। जितने मेंबर एग्रीकल्चर के अंदर रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मेंबर क्या है पुटअप किए गए हैं। मतलब अगर एक 1 एकड़ लैंड पर हमें 2% चाहिए तो वहाँ 5% लगे हुए हैं। 3 आदमी क्या है फ्री है। अगर उन 3 आदमी को वहाँ से रिमूव करके किसी और सेक्टर में लेके जाओगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वहाँ पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है 0 है। जिस कारण से क्या हमारा जीडीपी रेशो क्या है लो है। और जीडीपी रेशो लो होगा तो पर कैपिटा इनकम कम होगी। पर कैपिटा इनकम होगी तो कैपेसिटी ऑफ पर्सन कम होगी। जब कैपेसिटी ऑफ पर्सन कम होगी कैन नॉट फुलफिल देयर मिनिमम नीड्स। इट्स ए मेन कॉज ऑफ अफेक्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। जिस कारण से एम्प्लॉयमेंट से वो दूर हो जाते हैं, जिस कारण से क्या एम्प्लॉयमेंट फेस होती है। अनदर रीज़न इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है। इसके अंदर इनोवेटिव एक्टिविटी नहीं है, इसके अंदर क्रैमिंग ज़्यादा है, स्किल्ड वर्क नहीं होता, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। कई रीज़न है। दूसरा जो हमारी एजुकेशन है वो अकॉर्डिंग टू नीड चेंज नहीं की गई, जिस कारण से क्या है हमारे पास डिग्रियों का दबाव होता है। डिग्रीज का दबाव ज़्यादा होने के कारण हम डिग्री तो कलेक्ट करते हैं बट फेल टू गेट जॉब इन प्राइवेट सेक्टर्स। वी आर गोइंग टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड टू जॉब टू ऑल दी पर्सन। चाहे अगर भगवान भी नीचे आकर बैठ जाए वो कहेगी मैं सिस्टम बढ़ाऊंगा तो भी वो हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। दैट इज़ नीड टू चेंज द थिंकिंग पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इसलिए हमें सबसे पहले एजुकेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत है ताकि वो जॉब ओरिएंटेड हो सके। जॉबलेस ग्रोथ आल्सो वो हम रीड कर सकते हैं। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। आज पर कैपिटा इनकम 80,000 से ऊपर है, जो कि अगर हम 1950-51 की बात करें तो 250 रुपीज़ थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा हमने इनकम को राइज़ किया है। बट कंपैरेटिव पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, सेक्टर्स के अंदर मॉडर्न टेक्निक्स आने के कारण एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कम हो रही है, कंप्यूटर्स और मॉडर्न टेक्निक्स की डिमांड ज़्यादा है। जिस कारण से क्या है ग्रोथ तो हो रही है बट वो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को जनरेट करने में सफल नहीं हो पाई, जिस कारण से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। डिक्लाइन ऑफ कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारा कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। आफ्टर इंडिपेंडेंट 1955 के अंदर गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की स्कीम बनाई थी, जिसके अंदर क्या था कि मोर देन 500 गुड्स रिजर्व थी कि उसको सिर्फ 500 जो मीडियम जो इंडस्ट्रिस्ट है वही प्रोड्यूस कर पाएगा, बड़ी कंपनियां उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। तब तक तो थोड़ा सा राइज हुआ हमारा कोटेज और समाज की इंडस्ट्री थोड़ी सी प्रोड्यूस हुई क्योंकि उसको कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका लॉस ये हुआ कि हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं राइज हुए तो हम डिमांड को जनरेट नहीं कर पाए, फॉरेन के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, जिस कारण से 1991 के अंदर एमएनसी कंपनी से सामना हुआ तो ये कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने यहाँ फेल होगी। क्योंकि जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी तो आराम से खा सकती है, जो आपको भी पता है। क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज़ की कैपेसिटी, बड़ी इंडस्ट्री की रिस्क बेयरिंग, बड़ी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोटी कंपनियां बीट नहीं कर पाती, जिस कारण से क्या है मोर देन 234 लाख यूनिट्स आफ्टर 1991 के हमारे फेल हो गए, जिस कारण से बैंकों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा, जिस कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के हमारे ड्रॉप हो गए, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से फैला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can discuss with me. In my next video we will be take topic suggestions to remove the unemployment country like India.
थैंक यू।